ہم سب بیٹھ رہیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے صحبتوں کا تذکرہ مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو. اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ وادی قدرون کے پار گیا جہاں ایک باغ تھا. وہ اپنے شاگردوں سمیت اس میں داخل ہوا اور اس کا پکڑنے والا یہودا بھی وہ جگہ جانتا تھا کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا. پس یہودا سپاہیوں کا ایک گروہ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر چراغوں اور مشلوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا. یسوع وہ سب کچھ جانتے ہوئے جو اس پر واقعہ ہونے کو تھا آگے بڑھا اور ان سے کہا, تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا, یسوع ناصری کو. یسوع نے ان سے کہا, میں ہی ہوں. اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور جو ہی اس نے ان سے کہا کہ میں ہی ہوں تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے. تب اس نے ان سے پھر پوچھا, تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ بولے, یسوع ناصری کو. یسوع نے جواب دیا, میں نے تم سے کہہ دیا ہے میں ہی ہوں. پس اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو. یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ کام پورا ہو جو اس نے کہا تھا کہ جو تو نے مجھے دیے ہیں ان میں سے میں نے ایک کو بھی نہ کھویا. تب شمعون پطرس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا دہنا کان اڑا دیا. اس غلام کا نام ملبوس تھا. مگر یسوع نے پطرس سے کہا, تلوار میان میں کر. کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے؟ تب سپاہیوں اور صوبیدار اور یہودیوں کے پیادوں نے مل کر یسوع کو پکڑا اور اسے باندھا اور پہلے اسے حنان کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے کاہن اعظم قیافہ کا سسر تھا. یہ وہی قیافہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی. قوم کے بدلے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے. مگر شمعون پطرس اور ایک اور شاگرد بھی یسوع کے پیچھے ہو لیے اور اس شاگرد اور کاہن اعظم میں جان پہچان تھی اور وہ یسوع کے ساتھ کاہن اعظم کے صحن میں گیا. لیکن پطرس باہر دروازہ پر کھڑا رہا. تب وہ دوسرا شاگرد جو کاہن اعظم سے جان پہچان رکھتا تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پطرس کو اندر لے گیا. تب اس دربان لونڈی نے پطرس سے کہا, کیا تو بھی اس کے شاگردوں میں سے نہیں؟ اس نے کہا, میں نہیں ہوں. غلام اور پیادے جاڑے کے سبب سے کولوں کی آگ سلگا کر کھڑے ہوئے تاپتے تھے اور پطرس ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا. کاہن اعظم نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت سوال کیا. یسوع نے اسے جواب دیا, میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں. میں نے ہمیشہ عبادت خانے اور ہیکل میں تعلیم دی ہے جہاں سارے یہودی جمع ہوتے ہیں اور پوشیدگی میں کچھ نہیں کہا. تو مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جنہوں نے مجھ سے سنا ہے کہ میں نے ان سے کیا کہا. دیکھ انہیں معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا. جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس پر پیادوں میں سے ایک نے جو پاس کھڑا تھا
यसु को तमाचा मारकर कहा, तू काहने आजम को ऐसा जवाब देता है? यसु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ क्याफा कायने आजम के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर कायने आजम के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांध दी। तब यसू को क्याफा के पास से किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ढांगे ताकि नापाक न हो बल्कि फिसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यसू की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यसू को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यसू ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यसू ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यसू ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन सब ने चिल्लाकर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यसू को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें
कुछ कसूर नहीं पाता। बस यसु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किला में फिर अंदर आकर यसु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यसु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं, और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यसु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का है हुआ नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यसु को बाहर लाया और उस मकान में जो फर्शे मुकल्लफ या अबरानी में जबता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये पिसा का तेहिया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चलाए, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यसु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मकान तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे अबरानी में जुलजता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यसु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया और उसमें लिखा था, यसु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यसु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था, और वो अबरानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यसु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिना सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है,
कि मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हलफाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शगीर को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शगीर से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शगीर उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक पत्तल रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। और सर झुकाकर जान दे दी। सब रोजाना हो जाए। क्योंकि तहिया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहे। सबत का वो दिन था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छीनी और फिलफोर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी अमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो, किसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छीना है। बाद यूसुफ रामती ने जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए और पिलातुस ने इजाजत दे दी। पास वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मूल और दूध मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहां जिस जगह उसे सलीब दी गई थी एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस क्योंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहिया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों,
آج ہم سب بڑی عقیدت، احترام اور ایمان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کی محبت اور اس کی مہربانی کا شکر ادا کرنے آج یسوع کی صلیب کے سامنے جمع ہوئے ہیں۔ آج پاک جمعہ ہے، انگلش میں اسے گڈ فرائیڈے کہا گیا ہے۔ گڈ فرائیڈے یعنی اچھا جمعہ، ترجمہ کریں تو اچھا جمعہ۔ عزیزو، ہیلو ہیلو عزیزو، آج گڈ فرائیڈے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کی ذات پر، زندگی پر اور اس کے دکھوں پر غور کرتے ہیں تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کچھ اچھا ہوا ہے، کچھ گڈ ہوا ہے۔ یسوع سے پیار کرنے والے، یسوع کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، یسوع کے خیر خواہ، یسوع کے شاگرد اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو یسوع سے پیار کرتے اور عقیدت رکھتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یسوع کے ساتھ ایسا ہو یا یسوع پر یہ اذیت، یہ مصیبت اور یہ ظلم جو ہے، یسوع اس ظلم کا سامنا کرے۔ تو پھر یہ گڈ فرائیڈے کیسے ہوا؟ یہ اچھا جمعہ کیسے ہوا؟ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے بار بار انجیل مقدس میں اپنی اذیت کی پیشن گوئی کی، اپنے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بتایا، اپنے ہلاک کیے جانے اور صلیب کی صحبتوں اور اذیتوں کا تذکرہ کر رکھا تھا۔ یسوع جانتا تھا اور یسوع اسی ایک خاص مقصد کے لیے ایک مشن لے کر باپ کے پاس سے آیا تھا کہ وہ پوری امت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے گا۔ خدا نے یسوع مسیح کی وفاداری نے، یسوع کی تابعداری نے اور یسوع کی قربانی نے اسے گڈ فرائیڈے بنا دیا ہے، اسے اچھا جمعہ بنا دیا ہے، پاک جمعہ بنا دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جان دینے تک آج وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ وہ کلام جو کئی دفعہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہے، تو آج گڈ فرائیڈے کے موقع پر خدا یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر وفاداری کی، تابعداری کی ایک ایسی مثال ہمارے سامنے چھوڑی ہے جو ہر انسان کو سکھاتی، تربیت دیتی ہے کہ وفاداری کیسے کی جاتی ہے، تابعداری کیسے کی جاتی ہے۔ عزیزو، آج ہم خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت پر غور و خوض کرنے آئے ہیں، دھیان و گیان کرنے آئے ہیں۔ آج کی بات کا مرکز یسوع کی صلیب ہے، کوئے کلوری پر کھڑی یسوع کی صلیب، جس پر خدا یسوع مسیح کو مار دیا گیا، لٹکا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل پھونک کر، پسلی میں نیزہ ڈال کر یسوع مسیح کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور شاید یہ سمجھ بیٹھے کہ کہانی اور قصہ ختم ہو گیا ہے، لیکن عزیزو، خدا یسوع مسیح کی ہلاکت، یسوع کا قتل کیا جانا اور یسوع کا جان دینا اور اذیت سہنا، عزیزو، یہ نجات کا ایک پہلو ہے، نجات کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم
आगे चलकर देखेंगे, बल्कि कल शाम को ही हम इस बात का भी तजर्बा करेंगे कि मुकम्मल निजात यीशु के मरने और जी उठने में है। इसलिए आज जब हम खुदा यीशु मसीह के अज़ीयतों और सलीबी मौत पर गौर करने आए हैं, तो दर हकीकत में हम यीशु की सलीब पर आंसू बहाने नहीं आए, अफसुर्दा होने नहीं आए, नोहा और मातम करने नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह ने जो रोते भी थे उन्हें चुप कराया था और पुकार कर कहा था कि यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, मेरे दुखों पर, मेरी अज़ियतों पर, मेरे इस सारी सोबतों पर और दुखों पर और अज़ियतों पर और सलीबी मौत पर आंसू नहीं बहाने, बल्कि शुक्र करना है, खुदा का शुक्र करना है, खुदा की इस अजीम मोहब्बत के लिए, खुदा के इस बड़े तोहफे के लिए, खुदा के इस गहरे प्यार के लिए जो खुदा ने अपने बेटे की मार्फत हम पर जाहिर किया है। बल्कि यीशु ने तो रोने वालों को भी चुप करा दिया था। इसलिए पाक जुम्मा, गुड फ्राइडे मसीहों के लिए ये खुदा यीशु मसीह की कोई मेमोरियल सर्विस का दिन नहीं है। ना ही हम मातम करके, आंसू बहाकर, लोहा करके, छाती पीट कर आज इस मकाम पर बैठे, बल्कि हम फख्र के साथ, खुदा की शुक्रगुजारी के साथ यीशु की सलीब पर गौर करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हम गरीबों और कमजोरों और गुनाहगारों को इतना प्यार करता है कि वो अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान करता है। आज शुक्रगुजारी का दिन है, खुदा की अजीम मोहब्बत के लिए शुक्र गुजार होने का दिन है और आज यीशु की सलीब पर गौर करने का दिन है। अजीजों, मसीहत में सलीब एक खूबसूरत और मजबूत अलामत है, निशान है, अलामत है जो हमें हर बार याद दिलाती है कि हमारे गुनाहों का कफारा किसने दिया और कैसे दिया गया है। सलीब, जब भी हम सलीब पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं और सलीब पर नजर दौड़ाते हैं, तो हमें अपनी निजात का कफारा याद आ जाता है, निजात की कुर्बानी याद आ जाती है और वो अजीम हस्ती याद आती है कि जिसने इतना प्यार किया कि अपनी बाहें सलीब पर फैला दी ताकि हम सब जो है उसके निजात बख्श मंसूबे का हिस्सा बन सके और वो हमारे लिए दायमी जिंदगी हासिल कर सके। अजीजों, यीशु की सलीब का कोई बयान किस तरह कर सकता है? यीशु की सलीब को हम कैसे बयान कर सकते हैं? अल्फाज शायद हमें ना मिले और ऐसी सोच हमें ना मिले, क्योंकि जब भी सलीब बुलंद की जाती है और जब भी सलीब जो है हवा में लहराई जाती है, तो सलीब अपनी कहानी आप बयान करती है। कोई भी सलीब की कहानी को बयान नहीं कर सकता। सलीब पर लटका यीशु, सलीब पर कुर्बान हुआ यीशु, सलीब पर हमारा निजात दहिंदा अपनी दास्तान आप बयान करता है। और सलीब अजीजों हमारे लिए ऐसी जबरदस्त और खूबसूरत अलामत है जो हमें हौसला देती है और जो हमें तसल्ली देती है और मजबूत होने की दावत देती है। अजीजों, सलीब हमारा फख्र है और आज पाक जुम्मे को दर हकीकत में सलीब पर फख्र करने का दिन है, सलीब के लिए खुदा का शुक्र अदा करने का दिन है, ये सलीब को अपने दिल में उतारने का दिन है। और कहा जाता है कि आज सलीब की सालगिरह है, आज सलीब का सालगिरह का दिन है, क्योंकि वो सलीब, जिस सलीब पर मरने वाले की मौत को लानती मौत कहा जाता था, लेकिन हमारे निजात दहिंदे ने उस लानती मौत को और इस इबरत के निशान को पाकीज़गी के निशान में और
हमारे सामने पेश किया है। इसलिए सलीब आज हमारी ताकत और कुव्वत का निशान है। अजीजों, इसलिए जब हम गुड फ्राइडे की इबादत में शामिल होते हैं तो खुदा यीशु मसीह की सलीब और सलीब पर लटका यीशु और सलीब पर मसलूब यीशु जो है हम पर खुदा की अजीम मोहब्बत को बयान करता है। अजीजों, सलीब जो है, यीशु की सलीब, ये अपनी तासीर से, अपनी कुव्वत से ये खुदा की लाजवाब मोहब्बत को अया करती है और ये दुनिया की अदालत का फैसला भी करती है और खुदा की कुदरत को भी बयान करती है। सलीब ये वफादारी का तराजू है। तराजू, तकड़ी, तोलने वाली चीज, अलामत सलीब तराजू है जिसमें वफादारी परखी जाती है, जिसमें इंसान का प्यार परखा जाता है, जिसमें इंसान का खुलूस परखा जाता है कि कौन कितना किसी के साथ वफादार हो सकता है। सलीब तराजू है, सलीब तराजू है। अजीजों, सलीब के नीचे मौजूद यीशु का प्यारा शागिर्द और उसकी मां और बहुत सारी खवातीन, ये यीशु की वफादारी की अलामतें हैं, यीशु के प्यार की अलामतें हैं। और आज जब आप इतनी बड़ी तादाद में खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का शुक्र अदा करने आए हैं और खुदा की इस लाजवाब और अजीम मोहब्बत का शुक्र अदा करने आए हैं, तो दर हकीकत में हम सभी खुदा से अपनी अपनी वफादारी का इजहार और शुक्र अदा करने आए हैं कि खुदा मेहरबान है, वो हमें बहुत प्यार करता है और ये उसके प्यार की इंतहा है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए पेश कर दिया है। अजीजों, सलीब पर बहुत सारे वाकयात हुए, 7 सलीबी कलमात भी अदा किए गए और रोजों के अयाम में 14 मकामात के इबादतों के दौरान हमने इन पर थोड़ा बहुत गौर ख़ौस भी किया। लेकिन एक वाकया बड़ा जबरदस्त और शानदार हुआ, ये गैर कौम सूबेदार का वाकया। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहा था, सलीब पर लटकाया गया था और हवा में खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो थी ये हवा में लहराई गई थी और किसी ने भाला मारकर यीशु मसीह की पसली को छेद दिया था और लिखा है कि अंधेरा छा गया था। यीशु मसीह ने जब जान दी थी, अंधेरा छा गया था, चट्टानें तरह गई थी, ज़लज़ला आ गया था, बारिश आ गई थी और अभी अंधेरे का वक्त नहीं था, फिर भी अंधेरा छा गया था। अभी अंधेरे का वक्त नहीं था लेकिन फिर भी अंधेरा छा गया था। और जब इस गैर कौम सूबेदार ने ये सारा माजरा देखा था, ये सारी सूरत हाल देखी थी, किस तरह ज़लज़ला आया, किस तरह बारिश आई, किस तरह तूफान आया, किस तरह चट्टानें तर गई, तो उसने पुकार कर कहा था कि हकीकतन यकीनी तौर पर ये खुदा का बेटा था, ये खुदा का बेटा था। तो आज जब हम खुदा यीशु मसीह की सलीब पर गौर करने आए हैं तो दर हकीकत में हम उस सूबेदार के साथ मिलकर इस बात का इकरार करने आए हैं कि ये खुदा का बेटा है, ये खुद खुदा है। और खुदा इंसानों के प्यार की खातिर इस हद तक चला जाता है कि इंसान की मोहब्बत में और प्यार में अपना आप कुर्बान कर देता है। अजीजों, मैंने कहा कि पाक जुम्मा जो है ये खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत पर अफसुर्दा होने का दिन नहीं है, आंसू बहाने का दिन नहीं है, मातम करने का दिन नहीं है, नोहा करने का दिन नहीं है, बल्कि फख्र करने का दिन है। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि सलीब हमारा फख्र है, सलीबी मौत हमारा फख्र है। और सलीबी मौत ही ये ऐसी अलामत है, यीशु मसीह की सलीबी मौत एक ऐसी निशान और एक ऐसी अलामत है जो हमारी शनाख्त और पहचान
آج ہم سب خدا یسوع مسیح کے صلیبی موت پر غور و خوض کرنے آئے ہیں، تو آئیں خدا کا شکر ادا کریں خدا کی اس عظیم محبت کے لیے جو خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر کی ہے۔ آئیں چند لمحوں کی خاموشی میں، جتنے لوگ بھی ہیں چند لمحوں کی خاموشی میں خدا کا شکر ادا کریں۔ میں چاہتا ہوں جتنا بھی پنڈال ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، خاموشی میں شکر ادا کریں، یسوع کے صلیب کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں اور خدا کا شکر ادا کریں خدا کی عظیم محبت کے لیے، خدا کے اس عظیم پیار کے لیے کہ خدا ہم گناہگاروں کو کس حد تک پیار کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی، الہ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔